أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أفرغ قلوبنا بحب العلم اللهم افرغ قلوبنا بحب العلم القرآن رب زدنی علما میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آؤں قرآن سمجھیں سبق نمبر 4 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اس مبارکباد کے ساتھ کہ ہر بڑھتے ہوئے دن کے ساتھ ہم مزید قرآن کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آئیے سماعت فرماتے ہیں قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ تو آئیے آج کے ہم سبق میں انشاءاللہ اسی نصیحت کو پکڑنے کے لیے اس اللہ کے بنائے ہوئے قرآن کو آسان کیے ہوئے اس اس ذریعے سے اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کی آج مزید 2 آیات پڑھ کے ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ گرامر میں مذکر سے مؤنث الفاظ اور ان کی جمع، تو شروع میں مجھے یاد ہے پہلی کلاس میں ایک سسٹر کہہ رہی تھی کہ یہاں مؤنث کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو آج انشاءاللہ اس حوالے سے ذکر ہوگا۔ آج کا نقطہ تعلیم اور شوق، 11 نئے الفاظ آج ہم پڑھیں گے جو قرآن میں 3298 بار آئے ہیں، رفلی 3300 بار آئے ہیں۔ تو الحمدللہ سبق نمبر 4 جب مکمل ہوگا تو ہم 44 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 15387 بار آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر تیزی سے آپ 15,000 قرآن کے الفاظ جو آنے والے الفاظ ہیں ان کو جان پائیں گے۔ اب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیں گے، غور سے سنیے۔ جو ہم پڑھ چکے ہیں الفاظ، ان کا معنی، آ، ان کی ان کا سٹرکچر، ان کی گرامر، ان کے ٹکڑے، اس پر غور کیجئے۔ نئے الفاظ کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں کوئی لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہو اس پر بھی غور کیجئے، پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سنتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر۔ تو یہ تھے جی حافظ عبد المحمن، قرآن پاک کی تلاوت، ہمیں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہم سماعت کر رہے تھے۔ تو یقیناً پچھلے اسباق میں سے جو چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں آپ انہیں دیکھ پا رہے تھے، تو آپ میں سے کوئی مجھے بتانا چاہے گا کہ مالک کے کیا معنی ہے؟ آپ مالک، مالک، اور یوم کی جمع بتائیے، ایام، جام جی، اور الدین کا معنی بتائیے۔ نظام زندگی، روز جزا، یہاں پہ معنی بدلہ جو ہے نا، دیا، نہیں، روز جو ہے وہ یوم کا معنی ہے، اور اسی طرح نظام زندگی اس کا دوسرا معنی ہے۔ یہاں پہ جو الدین کا معنی ہے وہ کیا بدلہ، ہوگا؟ بدلے کی، بدلہ، بدلے کا مالی دن، روز جزا جزا. یا رزلٹ یا آؤٹ کم یا نتیجہ۔
ठीक है जी, इस माना में इसको लेंगे। अच्छा, ईया का कितने टुकड़े होंगे? दो। 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 या अकाल। दो। तो ईया, या का। इसमें से ईया का माना बताइए, खाली ईया। ही ही तेरी। ई। का तेरी। माना बताइए। तेरी तेरी। तेरी। तुम, तेरी, आप। आप। नअबुदु, नअबुदु क्या माना हम बनता है? इबादत करते हम हैं। हम इबादत इबादत करते हैं। करते हैं। वाह का माना सबको आता है। और। और 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 नस्ताइन का माना हम मदद हमारी हम मदद मदद चाहते तेरी हैं। मदद चाहते हैं। हम मदद चाहते हैं, ये मांगते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आइए अब आगे बढ़ते हैं आज नए सबक की तरफ। और नए सबक में है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो आइए इन अल्फाज को लफ्ज़न लफ्ज़न देखते हैं। पहला लफ्ज़ है इहदिना। तो ये देखिए, इहदिना दो अल्फाज का मजमूआ है। इसका जब टुकड़े करेंगे दो टुकड़े होंगे, इहदी और ना। इहदी का मतलब है हिदायत दे। इस लफ्ज़ को अगर आप गौर से करें तो इसमें हा और दाल का लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है, जो हिदायत के लफ्ज़ में भी होता है। तो इहदी हिदायत दे, ना वही वाला है जो आपने ज़मायर में कल पढ़ा था, जो जुड़ कर आते हैं। तो ये देखें, इहदी ना जो है उसके बाद जुड़ कर आया है। जो हमने पढ़ा ना, हु, हम, का, ये, कुम, ना, हमारे लिए, हमें, हमारा, इस माना में। तो इहदिना हिदायत दे हमें, इहदिना हिदायत दे हमें, इहदिना दो टुकड़े हैं, इसको आपने ज़हन नशीन रखना है कि इहदी और ना। इंशाल्लाह आगे चल के आप पढ़ेंगे कि ये जो इहदी या इस तरह के अल्फाज होते हैं वो क्या होते हैं। इहदी ना, हिदायत दे हमें। किस चीज़ की हिदायत? और हिदायत का लफ्ज़ क्या है? हिदाया या खुदन। तो रास्ता दिखा और रास्ता चला। हिदायत क्या होती है कि अल्लाह में रास्ता दिखा और वो रास्ता चला। हिदायत का रास्ता चला भी। तो इहदिना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब अगला लफ्ज़ है अस्सिरात। लेकिन उससे पहले याद रखें कि हिदायत कहाँ है? कुरान हिदायत है और कुरान हादी है। और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं हुदल लिन्नास, ये हिदायत है लोगों के लिए। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। हिदायत है लोगों के लिए और हिदायत है मुत्तकियों के लिए। तो कुरान क्या है? हिदायत है, हादी है, हुदल लिन्नास, हुदल लिल मुत्तकीन। तो अब हम देखते हैं अस्सिरात। अस्सिरात क्या हुआ? रास्ता। अस्सिरात रास्ता। और अलिफ लाम लगा हुआ है इसके शुरू में, आप सब समझ गए होंगे। तो ये कौन सा लफ्ज़ है बताएं? इसम है। इस्म इसम है। है। किसान। ये इस्म है। अस्सिरात अलिफ लाम लगा हुआ है तो खास रास्ते का जिक्र हो रहा है। तो हमें हिदायत दे रास्ते की। अस्सिरात रास्ता। और कौन सा रास्ता? फिर आगे बताया जा रहा है वो कैसा सीधा। रास्ता हो। अल मुस्तकीम। अल मुस्तकीम सीधा रास्ता। अल मुस्तकीम बिल्कुल सीधा रास्ता। तो याद रखने के लिए आपको, हम जब छोटे थे तो हम पढ़ा करते थे खत मुस्तकीम, मैथ्स में होता था, रियाजी में। याद है किसी को? जी। तो क्या होता था वो खत मुस्तकीम? वो ऐसा सीधी खत। लाइन। सीधी हाँ, लाइन। सीधी लाइन। सीधी लाइन जो होती थी, खत मुस्तकीम। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इंशाल्लाह मुस्तकीम का माना हमेशा के लिए ज़हन नशीन हो जाएगा। वो जाहिर है आजकल वाले जो यंग पढ़ने वाले हैं वो तो इंग्लिश में पढ़े होते हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन। बट ये हम पढ़ते थे खत मुस्तकीम, सीधा खत। तो यहाँ पे है सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। तो हमने अल्लाह से हिदायत मांगी है, एहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे। अल मुस्तकीम, मुस्तकीम क्या है? सीधा। और अस्सिरात रास्ता। तो ये बन गया खत मुस्तकीम। अलिफ लाम ने क्या किया? खास कर दिया अस्सिरात को भी और अल मुस्तकीम को भी। तो यहाँ पे चूंकि एक खसूसी सीधे रास्ते का जिक्र हो रहा है, तो हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे। तो अब हम अल्लाह से
سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے، تو اللہ کے فضل سے وہ ہم ہیں۔ اب ہدایت ہمیں کہاں چاہیے؟ نماز پڑھتے وقت ہدایت، نماز کے بعد کام کرتے ہوئے، کوئی بھی کام کر رہے ہو زندگی کا، گھر میں ہدایت، آفس میں، اس کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، کہ کہیں، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ انسان ایک سیکنڈ میں بھٹک جاتا ہے، بازار میں شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت، گویا ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے ہم ہر نماز میں اور بار بار اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے۔ اور ہدایت ملتی کہاں سے ہے؟ ہدایت ملے گی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا کہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، ہدی للمتقین۔ سب سے پہلے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں، آپ کی تعلیمات میں ہدایت ہے۔ تو ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث بھی پڑھنی چاہیے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، تو اور قرآن جو ہے وہ ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ ہماری زندگی میں ایمرجنسی ہے۔ سو اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے۔ اور عربی کے یہ جو الفاظ ہیں، اہدی اور نا، ہدایت دے ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ تو ہدایت کی ضد کیا ہوتی ہے؟ ضلالت ہوتی ہے، یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک و شبہ میں پڑ جائے، یا غلط خواہشات میں اور غلط کاموں میں لگ جائے، اور اس طرح اپنی دنیا و آخرت برباد کر لے۔ تو یہاں سے ہم نے سورہ فاتحہ کی اس آیہ مبارکہ سے ایک اور عادت ہم نے سیکھی، عادت نمبر 10، کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا، ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا۔ تو یہاں بھی ہم اللہ سے ہدایت طلب کر رہے ہیں، صحیح راستہ پتہ کرنا، اس پر چلنے کی توفیق کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جی چلیے دہرائیے سسٹر سارا اس کو۔ سسٹر صفیہ آپ دہرائیے۔ ایکسکیوز میں کروں. جی دہرائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام۔ اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے. سیدھے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی سسٹر شائستہ آپ بھی دہرائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے. المستقیم سیدھے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جی سسٹر شہناز اختر دہرا لیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے۔ سیدھے راستے کی۔ اچھا اب آپ لوگ جو بھی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے سب سے اپنی اپنی جگہ پر اس کو دہرا لیا کریں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ جو سیدھا راستہ ہے جس کی ہدایت ہم نے مانگی، اس کی آگے وضاحت بھی قرآن نے کر دی، ہمارے لیے آسانی بھی کر دی۔ تو وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر، یعنی جن پر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلا لفظ ہے صراط، یہ تو وہی ہے راستہ، ابھی ہم نے پڑھا ہے الصراط المستقیم سیدھا راستہ، تو صراط راستہ۔ الذین، الذین کا لفظ ہوتا ہے، جمع کا لفظ ہے ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو، یہ جمع ہے الذی کی۔ تو الذین قرآن میں 1000 سے زائد بار ہے، 1000 سے زائد بار ہے الذین، ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو، 1080 ٹائمز صراط الذین، الذین ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں، اور جب آپ قرآن کھولیں آج اور آپ اس میں دیکھیں
کہ الذین کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو اکثر آپ کو یا ایھا الذین آمنو نظر آئے گا، تو ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو الذین، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا. تو اس کا واحد کیا بتایا میں نے آپ سب کو؟ الذین کا الذی الذی الذی، الذی واحد ہے، یعنی وہ یا وہ جو، اور الذین ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو. تو انعمتا، اگر آپ انعمتا پہ غور کریں تو اس میں انعام اردو کا لفظ ہوتا ہے انعام، یا اس کے جو مادے کے حروف ہیں نون عین میم، نعم، نعمت کے لیے. ٹھیک ہے. تو راستہ ان لوگوں کا انعمتا، انعام کیا تو نے، انعمتا، اس میں تا جو ہے نا، جیسے ہم نے انتا پڑھا نا، اس سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. یاد رکھنے کی ایک ٹپ یہ ہو سکتی ہے کہ انعمتا، انعام کیا تو نے، انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم، یہ دو الفاظ کا ٹکڑا ہے، علا اور ہم. اور یہ ہم وہی ہے ہم والا. آپ کو یاد ہے نا، ہم نے کہا تھا آسانی کے لیے ہم اس کو، تو یا کے ساتھ علا کے ساتھ لگا تو یہ ہم بن گیا. علیہم، ان سب پر. ٹھیک ہے جی. انعامتا، انعام کیا تو نے، علیہم، ان سب پر. یہ علا اور ہا میم مل کر ہم یعنی ہم مل کر آیا ہے تو بن گیا علیہم، انعام کیا ان پر. تو دو طرح کے ہم آپ نے پڑھے ہیں، جو الگ سے آتا ہے اور یہ جو جڑ کر آتا ہے، جو ہم نے ٹیبل پڑھا ہے ہو، ہم، کا، ی، کم، نا. تو آج ہم نے نا کو دیکھا اہدنا میں، اور یہاں پہ دیکھیں ہم کو دیکھا علیہم میں. تو اب آپ نے دیکھا یہ ٹکڑے جڑ جڑ کر آنا شروع ہو گئے، جو آپ کو بتایا گیا تھا کہ قرآن کی ہر لائن میں تقریباً مل جاتے ہیں. یہ ضمائر جو ہیں الفاظ کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں. تو اللہ نے انعام کس پر کیا؟ اللہ رب العزت نے انعام کیا انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ چاروں لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. اب ان کا راستہ کیا تھا جس کے لیے اللہ نے ان پر، کیونکہ لکھا ہوا ہے صراط الذین انعمت علیہم، تو ہم دیکھتے ہیں سب سے بہترین راستہ انبیاء کا، اور ان میں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال. تو آپ نے چار طرح کے کام کیے. دل کے اعمال سب سے پہلے، جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اللہ کا ڈر، اللہ پر توکل اور بھروسہ. ٹھیک ہے جی. بقیہ اعمال تھے جیسے ہمارے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک. تو اس حوالے سے آپ نے کام کیا. دعوت، پھر اسی پہ بس نہیں کیا، ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے. تو ہمارے لیے یہ سیکھنے کا طریقہ ہے. تزکیہ نفس، تزکیہ یعنی پاکی، لوگوں کے عقیدے، اعمال، اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا، اور اس کے ساتھ نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. تو خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کروایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے کام کیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر. تو یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے. تو ہم ایک اور 11 نمبر عادت سیکھتے ہیں کہ ہمیشہ اچھے ماڈل یا نمونے یا مثالوں، جن لوگوں کی ان کے طریقے پر چلنا، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، ان کے جیسا بننے اور کام کرنے کا پلان بنانا اور اس پر عمل کی کوشش کرنا. تو ہمارے رول ماڈل انبیاء، انبیاء کے صحابہ، ان کے ساتھی، اور دین اسلام کے ایسے لوگ ہمارے ہیروز ہونے چاہیے. ان کو ہم اپنے بچوں کے سامنے رکھیں. آج کل آپ دیکھیے کہ بچے، آپ ان سے پوچھیں کیا بننا ہے تو آپ کو خود جواب مل جائے گا کہ وہ کس طرح کے نام لیتے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے ایک کوتاہی ہماری طرف سے ہوتی ہے کہ ہم انہیں تعارف ہی نہیں کروا پائے اپنے ایسے مشاہیر اور دینی اور اسلامی جو ہماری شخصیات ہیں ان کے ساتھ. تو ان کا راستہ جو ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. جی سسٹر، بردر باسط پڑھیے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम उन पर। माशाल्लाह। सिस्टर गुलनाज पढ़िए। सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम उन पर। माशाल्लाह जी। डॉक्टर शमीम फरमाइए, अल्लजीना का क्या माना है? उन लोगों का। जिसका वाहिद क्या है? अल्लजी, अल्लजी। और अनअमता का माना? इनाम किया तूने। अलैहिम के कितने टुकड़े हैं? फिर दो हैं, क्या टुकड़े अलैहिम। होंगे? अला और हिम। वेरी गुड। तो ये हो गया अला, जी हमारा सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो अगला टुकड़ा है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। तो पहले पढ़ते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ना कि गदब किया गया उन पर। गैर, गैर का जो लफ्ज़ है ना, इसके दो माना होते हैं, नहीं और उसके अलावा। दो माना के अंदर ही पाया जाता है। तो यहाँ पे है नहीं वाला माना, गैरिल मग़दूबी, ना गजब किया गया, नहीं गजब किया गया, अलैहिम जिन पर। तो गैर, तो यहाँ एक कैटेगरी बता रही है उन लोगों की, अल मग़दूब, जो गजब किए गए थे। तो हम दुआ ये करें कि अल्लाह हमें उनमें से न करना, हमें किनका रास्ता दिखाना? सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी, ना के गजब किया गया जिन पर उनका। गैर का माना हो गया नहीं और उसके अलावा। और अल मगदूब जो है, इसको समझने के लिए यूं समझे, मजलूम। मजलूम कौन होता है? जिस पर जुल्म किया गया। मजलूम जिस पर जुल्म किया गया, मगदूब जिस पर गजब किया गया। मगदूब जिस पर गजब किया गया। तो ये आपने जहन में रखना है, मगदूब जिस पर गजब किया गया। तो गैर मगदूबी अलैहिम, जिन पर गजब किया गया। अला और हिम, ना कि उनका जिन पर गजब किया गया। अलैहिम वही वाला है, दो टुकड़े हो गए। और वलद्दालीन, तो यहाँ पे जो पहले वाह और ला है, ये दो अलग अलग हैं। वाह और ला नहीं, वाह और ला नहीं। ये जो ला है, ला, अच्छा इसका फर्क याद रखना है। एक हमने अल्हम्दुलिल्लाह में ली या ला पढ़ा है, ठीक है, वो है खाली जबर के साथ। ये जबर के साथ आगे अलिफ भी है, ला, ठीक है। तो यानी एक तो ये होगा यूं खाली, ये है ला। और ये बाजू का ली की फॉर्म में आता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह में ली, ली अल्लाह, तो ला की फॉर्म में भी। माना आपको याद है? क्या माना था इसका बताएं? के लिए। लिए, ठीक है। और यहाँ पे ला, ये अलिफ के साथ है जो लंबा है, हमजा के साथ, ला ना, इसका माना भी होता है नहीं या ना। तो ये 1700 बार है कुरान में। तो अभी अगर आप जहन नशीन कर लें, तो कुरान के 1700 अल्फाज आपको जहन नशीन हो गए, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं अगला लफ्ज है दौलीन। अदौलीन, ये बना है दौलुन से, गुमराह होने वाला। जो गुमराही दलालत भी कहते हैं ना उर्दू में भी। तो दौलुन से कैसे बना ये? आपको जमा बनानी आती है। अगर दो पेश वाला होता तो वाव नून वाली जमा बनती, दालून। तो दौलीन में कौन सा है? दो जबर या जेर वाला। तो दौलीन या नून वाली जमा बन गई। तो दौलून इसम है, उसकी जमा बनी अदौलीन, जो सब गुमराह हुए। तो अब कहा यह जा रहा है कि सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। दो ग्रोहों का जिक्र हुआ। अल मग़दूब, तो अल्लाह ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ। ये कौन लोग थे अल मग़दूब? जेन में आपने बिठाना है, इनका फर्क भी जेन में रखना है। ये वो थे जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे। यानी इन्हें पता था सही क्या है तरीका, लेकिन अमल नहीं था। इल्म था, अमल नहीं था। तो अल्लाह हमको सही अमल करने की तौफीक दे। तो अंदाजा करें, अल्लाह कह रहे अल मगदूब, अल्लाह इनके साथ इन पर गजबनाक हुआ। अब जिस पर अल्लाह गजबनाक हुआ, उसकी हालत क्या होगी? आप इसका अंदाजा कर सकते हैं। आम कोई हमारा बड़ा
नाराज हो जाए, आपके घर वाले, वालिद साहब, तो हमें बड़ी परेशानी लाहक होती है। तो जब अल्लाह किसी से नाराज हो जाए तो उसका आलम क्या होना चाहिए? तो गैर मगदूबी अलैहिम, ना कि जिन पर गजब किया गया। और मगदूब कौन लोग हैं, इनकी तारीफ क्या है? गजब तो इन पर किया गया, लेकिन ये थे कौन? जो पहले जानते थे, जो करते थे, अमल नहीं करते थे। तो हम जिंदगी में क्या करते हैं? हम सारे ही चाहते हैं कि किसी, कोई हमारा हीरो हो, रोल मॉडल हो, हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह रहना चाहते हैं, उस जैसे कपड़े, उस जैसे स्टाइल, उस जैसी बातें। तो जब आप किसी को रोल मॉडल बनाना चाहें, अपना हीरो बनाना चाहें, किसी से इंस्पायर हों, तो सबसे पहले देखें कि क्या वो कुरान और हदीस में किस तारीफ में पूरा उतरता है। वो क्या वो कुरान और हदीस पर अमल करता है या उसके खिलाफ कर रहा है? तो हमारे हीरोज जो हैं वो होने चाहिए जो कुरान और हदीस पर अमल करने वाले हैं। फिर दूसरी कैटेगरी है दौलीन की, और इनको भी अल्लाह ने कहा ये गुमराह हुए, यानी ये भी भटक गए। ये कौन थे? ये, इनको इल्म भी नहीं होता और सही बात को जाने बगैर अमल करते हैं, बस अंधाधुंध, ना इल्म हासिल किया, ना चीज़ की असलियत जानने की कोशिश की, बस अमल पर नजर रखी। तो इन्हें परवाह ही नहीं होती कि दुनिया में क्यों आए हैं, जिंदगी का क्या मकसद है, सही इल्म हासिल करने की इनको कोई फिक्र नहीं, और ना ही वो उसके लिए वक्त निकालते हैं। तो इन्हें कहा गया दौलीन। तो ये दो कैटेगरीज का से हमने कहा कि अल्लाह हमें इनमें से ना करना। हमें किन में से करना? अनअमता अलैहिम, जिस पर तूने इनाम किया। तो गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन, और ऐसों पे नहीं जो मगदूब हो और द्वालीन हो। अब देखें, इसको अगर हम जिंदगी में लाएं आजकल अपने उस पर, तो कुरान हमारे पास है, कुरान में सारा इल्म है, हिदायत है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है हम इसको समझते नहीं और हदायत पास होने के बावजूद भटक रहे हैं? वजह क्या है? कुरान की अरबिक समझ नहीं आती, हमें पता ही नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे लिए कुरान को सीखना आसान कर दे, और हमें कुरान समझने पे इस्तकामत अता फरमाए। और उसके लिए आप प्लान भी कीजिए, वक्त निकालिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग तो वो हैं ज़ाहिर है जिन्होंने वक्त निकाला हुआ है। अल्लाह ताला आपके वक्त में बरक़ात अता फरमाए, और हमें इससे हिदायत अता फरमाए, और हमें इनाम याफ्ता लोगों में कर दे। तो यहाँ से हमने सीखा कि अल्लाह हमें सही बात पर अमल करने की तौफीक दे, और ना पता हो तो इसका इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा। और आदत नंबर 12, जो आखिरी आदत है हमारे तावुज़ और सूरह फातिहा दोनों को मिलाकर 12 आदतें, कि जो बुरे रोल मॉडल हैं, बैड रोल मॉडल्स, उनसे दूर भागना, और दुआ करना कि अल्लाह ताला उनकी पैरवी से बचाए। हम बुरे रोल मॉडल्स के पीछे ना चलें। और 12वीं आदत हमने, यानी जो मगदूब और दालीन की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो गैर मगदूब अलैहिम वलद्दालीन। जी सिस्टर सिद्रा मलिक पढ़िए। गैरी न अल मखदूबी गजब किया गया अलैहिम उन पर वला और ना और दौलीन जो गुमराह हुए। जी सिस्टर शहनाज अख्तर पढ़िए। गैरिल मगदूबी, गैर ना गदब किया गया अलैहिम उन पर, वला और ना अद्दौलीन जो गुमराह हुए। हम्म। तो असल में गैरुल ये मग पिछली आयत से मिलाकर पढ़ें तो माना सही क्लियर बनता है कि हमें क्या कर, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि हमें उनका रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम हुआ, ना कि उनका जिन पर गजब किया गया और जो गुमराह हुए। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सूरह फातिहा की यहाँ पे तकमील हुई। तो इस हवाले से सूरह फातिहा के हवाले से एक हदीस मुबारका, और अल्हम्दुलिल्लाह इस ये हदीस मुबारका ऐसी खसूसी और इतना शौक दिलाने वाली है कि इसको सुनने के बाद आपकी नमाज में आपका बिल्कुल अंदाज बदल जाएगा, आपके शौक का, आपकी मोहब्बत का, आपकी इन्वॉल्वमेंट का। कि हदीस कुदसी है, और आप जानते हैं हदीस कुदसी
ऐसी अहादीस जो अल्लाह के अल्फाज अल्लाह के नबी हम तक पहुंचाते हैं, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपनी नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर ली है। आधी मेरी है, आधी मेरे बंदे की है। मैं अपने बंदे को वो देता हूँ जो वो मुझसे मांगे। और बड़े ही खूबसूरत अल्फाज हैं कि बंदा, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है, अब देखिए ज़रा गौर कीजिए कि कैसी खूबसूरत अल्लाह ताला इज्जत देता है अपने बंदे को कि अल्लाह उसका जिक्र करता है। तो अल्लाह फरमाता है हामिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। अब देखिए अल्लाह ने अब्दी का लफ्ज इस्तेमाल किया, मेरा बंदा। और फिर जब आप कहते हैं रहमान रहीम, अल्लाह फरमाता है असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। आप कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह फरमाता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जो जो आप पढ़ते जाते हैं, अल्लाह ताला आपको याद करते हुए इनामात की बारिश करता है। आप कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। और जब आप आगे पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे बंदे के लिए है, जो कुछ मांगेगा सब कुछ मेरे बंदे के लिए है, जो कुछ मांगेगा सब कुछ उसे मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह फातिहा पढ़ते हुए इस ख्याल और तसव्वुर के साथ पढ़ें कि आपका रब आपको याद कर रहा है, और यकीनन हमारा रब हमें बेहतर महफिलों में बेहतर लोगों के दरमियान याद कर रहा होगा, फरिश्तों के दरमियान। कि आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने फरमाया हामिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। असना अलैया अब्दी, मज्जदनी अब्दी। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपका इंतखाब किया है, आपको कुरान सीखने के लिए मुंतखब किया है। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए, इससे दूर नहीं हटें, अल्लाह को शुक्र अदा करते रहें, और इसको कभी भूलिए मत कि अल्लाह ने ये फ़ज़ल हम पे किया, लिहाजा हम पे शुक्र उसका वाजिब है। और अल्लाह से दुआ भी करते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो यहाँ पे हमारा कुरान का सबक मुकम्मल हुआ। अब हम ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे। इस दरमियान किसी का कोई एक आध सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर हम इंशाल्लाह ग्रामर की क्लास को शुरू करते हैं। वालेकुम, मेरा नाम मुजुद्दीन है और मैं जो है ना अपनी फैमिली के साथ जो है ना इफ्तार का प्रोग्राम देखता हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये जो आपने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बदले में जो है अल्लाह ताला फरमाता है हमादनी अब्दी, तो ये हदीस में है या कहाँ से लिया गया है ये, और हमें कहाँ ये से जी मिलेगा ये जवाब? हदीस मुबारक है और साथ रेफरेंस दिया हुआ है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ये हदीस के अल्फाज हैं। मतलब ये ठीक है कुरान में हम जब नमाज पढ़ रहे हैं तो हम बातें कर रहे हैं अल्लाह ताला से? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। तो वैसे भी हम कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि अगर आप यानी आप चाहते हैं कि आप अल्लाह से बात करें तो आप नमाज पढ़िए, और आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करे तो आप कुरान पढ़िए। तो ये तो हदीस के अल्फाज आपके सामने रखे गए हैं, पूरी हदीस। जी, एक सवाल आया हुआ है सिस्टर अजरा की तरफ से, क्या अमता फेल है? जी बिल्कुल फेल है। जी माजी का है, ठीक है। अभी चूंकि बाकी लोगों ने पढ़ा नहीं, इसलिए हम अभी इसका जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन जी फेल है और माजी का फेल है। तो आइए जी, अब हम ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। और सबक नंबर 4 की ग्रामर में इंशाल्लाह आज हमने जैसा कि कहा था मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना वो भी सीखेंगे। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ग्रामर में मुज़क्कर से मुअन्नस और उसकी जमा के पर हम करेंगे आज। तो ग्राम सबसे पहले टीपीआई कर लेते हैं, और टीपीआई हम जानते हैं, टीपीआई के इशारे क्या हैं? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिखाइए,
दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए, मिलकर कीजिए। जी सिस्टर सफिया मलिक, अगर आप खुद को अनम्यूट कर लें और ये करवाना चाहें तो इशारे करवाइए और सब लोग आपके साथ करें। माइक को अनम्यूट कीजिए। सुनिए, कानों की तरफ इशारा है, देखिए, आंखों की तरफ सोचिए, दिमाग की तरफ बोलिए, मुंह की तरफ बताइए, ये भी जबान मुंह की तरफ, दिल से दिल की तरफ मिलकर कीजिए कि आपस में मिलके जैसे दोनों हाथ मिलाए हैं इस तरह। माशाल्लाह। तो सिस्टर बस आपने इसके इशारे करने हैं, इससे हमें मफहूम भी वाज़ेह होता जाएगा। यानी ये सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए। हाँ अच्छा याद रखें, बोलिए जो है ना, ये जुबान से बोलकर जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और ये जो बताइए है ना, वो बेसिकली जो हाथ के इशारे हैं उससे आप बता रहे होते हैं कि अच्छा ये है, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। और दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। तो यानी सब मिलजुल कर भी सीख रहे हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। घरों में भी मिलजुल कर सीखे। अभी जैसे हमारे जो भाई बात कर रहे थे, मुझे बड़ी खुशी, उन्होंने कहा गालिबन वो सब लोग मिलकर बैठे हुए हैं। कुछ इस तरह का उन्होंने मुझे जो अल्फाज लगे। ब्रदर एम आई राइट, आप बता रहे थे शायद फैमिली मिलकर बैठी हुई है, तो बड़ी खुशी की बात है कि मिलजुल कर सब लोग सीख रहे हैं। तो आइए, ये टेबल हम सब कर चुके हैं, और इस टेबल को हमने पहले भी दोहराया है। एक दफ़ा और सिस्टर शाइस्ता को कहते हैं और उनके साथ हम सब मिलकर दोहरा लेंगे। जी सिस्टर दोहराइए। जी। हुआ, वो, हुम, वो सब, अंत, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। नाखनू, हम सब। तो ये टेबल बड़ा अहम है। 1300 बार ये अल्फाज हैं, और ये जो है ज़मायर, ये अलग से आते हैं, यानी इसी हालत में कुरान में नज़र आते हैं। ठीक है। और वो जो हमने पढ़े थे टुकड़े, वो यानी जुड़ कर आते हैं। जैसे आज हमने देखा, ना जुड़ कर आया और हिम जुड़ कर आया। इसके अलावा अल्फाज, ये कलमे की किस्में, मैंने आपसे कल भी कहा था, आपको रटने की, दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है, हम रोज़ाना पढ़ेंगे। इस्म, किसी चीज़ का नाम, जैसे किताब, मक्का, किसी चीज़ का नाम से मुराद किसी का नाम या चीज़ का या जगह का, इन्हीं चीज़ों के नाम होते हैं। और अरबी में सिफ्त भी इस्म को कहते हैं, या सिफ्त भी होगी। तो कोई मोमिन है, ईमान वाला है, कोई काफिर है, और कोई सौले है, नेक है, तो ये सब इस्म की तारीफ में आएंगे। इसकी निशानियां भी हमने देखी थी कि अलिफ लाम, दो पेश, दो जबर, दो जेर, जमा में वाव नून या नून, और इसकी मुअन्नस में अलिफ ता आज हम देखेंगे। फेल क्या होता है? जिससे काम के होने या करने का पता चले। इंग्लिश में जैसे वर्ब कहते हैं, और वो किसी खास वक्त में हो रहा होता है, तो फेल। उर्दू में भी फेल आप जानते हैं, हर्फ जो है वो इसम और फेलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना, अभी अला भी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, तो हम इंशाल्लाह इनको मज़ीद तफसील से भी पढ़ेंगे। तो ये वो ज़मायर हैं जो जुड़ कर आते हैं। इससे पहले जो ज़मायर आपको टेबल में दिखाया, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नखनु, वो अलग से आते हैं। और ये जो है जुड़ कर आते हैं, मुत्तसिल, जुड़ कर किसी के मुत्तसिला। साथ। जी। तो जी सिस्टर हाफिजा तैयबा, आप करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सब का, ना हम सब का। ना हमारा। ठीक है। इसकी खूब अच्छी से आप लोग प्रैक्टिस रखें, और इसके माना भी, क्योंकि बार बार जुड़ कर आएंगे ये। जी सिस्टर शहनाज, आप भी करवा दें। ज़रा सारे प्रैक्टिस साथ इशारे करें, ताकि हम सबके पक्के हो जाएं ये इशारे। जी सिस्टर शहनाज अख्तर, करवाइए। जी। हु, उसका, हुम, उन सब का, आपका, ये, मेरा, कुम, आप सब का, ना, हमारा, हम ना सब का। हमारा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। और ये वाला टेबल जो है, ये देखें, ये कुरान पाक में 950 बार हैं ये अल्फाज। सिस्टर सादिया सईद करवा दें, और हम सारे खूब शौक से इसको साथ दोहराएं। जी। रब्बुहु, उसका रब,
रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। रब्बुना हमारा रब। और ये सबसे आसान टेबल भी है इन टुकड़ों को, ज़मायर के इन टुकड़ों को याद रखने के लिए। और ये मुत्तसिल यानी जुड़ कर आए हैं यहाँ पर। रब के साथ हु, फिर हम, फिर का, ये, कुम और ना। ये ना वही है जो इहदिना में था, ठीक है जी। और कुम रब्बुकुम में, रब्बी में जो ये है, ये हमिदनी में भी आपको नजर आया है। और रब्बू का में जो का है ये इया का में भी आपको नजर आया है। और रब्बू हम में जो हम है ये अलैहिम में आपको नजर आया, ये हिम की सूरत में भी आ सकता है। और इसी तरह रब्बू हु में हु है। ठीक है जी। आज का जो सबक है हमारा, मुजक्कर से मोन्नस और उसकी जमा। ठीक है। अच्छा, देखें, आपको याद है ना, मैं इस तरफ इशारा किया था, तो ये क्या था? मुजक्कर। और ये वाहिद, ज्यादा उंगलियां जमा। और हमने कहा था हम इधर जो बात करते हैं तो वो कोई ऐसा होता है जो, तो जैसे मैंने हुआ बोला था, आप सबको माना आ गया था। क्या माना था हुआ का, बोलें? वो वो। तो ये वो कौन है? ये मर्द है औरत है, कौन है? मर्द मर्द। मर्द है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं अरबी का एक लफ्ज इस उल्टे हाथ से एक उंगली से इस तरफ इशारा करके बोलता हूं, हिया, हिया, तो आप लोग बताएं ये क्या होगा माना इसका? मुन्नस। मुन्नस। एक औरत एक वो औरत। औरत, माना वही वो होगा खातून, वो, एक लेकिन वो कौन? वो एक और मुअन्नस, एक मोन्नस या एक औरत। ठीक वो है जी। एक औरत। हाँ, एक मोन्नस हिया। तो हुआ मुजक्कर, और इसकी मोन्नस क्या बनी? किया हिया। हिया। हिया, हुआ, हिया। तो हम सबसे पहले इस एक मुअन्नस के बारे में सीखेंगे और इसको जानेंगे। मुजक्कर क्या है? हुआ। मुअन्नस क्या है? हिया। देखिए, मुअन्नस के साथ ही वहां पे फूल भी आ गया, तो मुअन्नस के लिए खुसूसी इनाम भी है। तो हुआ वो मर्द, हिया मर्द। वो औरत। वो पहले जरा हम इसको पक्का करते हैं। तो सबसे पहले ब्रदर जकाउल्लाह करवाएं जरा। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। वेरी गुड जी। सिस्टर जोहरा करवाएं। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। है ना? सिस्टर जोहरा हुआ अपना वो माइक अनम्यूट कीजिए। आपको इनवाइट भेजा, उस पर कर लें। हुआ वो औरत, हिया वो मर्द, वो औरत। हैं? ये उल्टा बोल दिया आपने। हुआ हुआ। वो हुआ मर्द या वो औरत। जी। जूम यूजर पे जो है वो भी करवा दें, और इसमें आईडी पे अपना नाम लिखें तो बेहतर है। हाँ वो औरत। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। सिस्टर शगुफ्ता करवाएं। हुआ वो मर्द है या वो औरत। ठीक। ये लफ्ज है हुआ। ठीक है। उर्दू हुआ में बोलने में हमें हुआ लगता है, लेकिन ये हुआ है पेश के साथ। हुआ वो मर्द, हुआ या हुआ वो औरत। वो मर्द वो अकेला मर्द है या वो अकेली औरत। वेरी गुड सिस्टर। सिस्टर इफ्ता नवाज, आप भी करवाएं। इफ्सा हुआ नवाज। मर्द, हाँ। वो मर्द, हिया वो औरत, हिया औरत। हाँ जी। जी। ब्रदर बासित करवा दें। मुज़क्कर हुआ वो मर्द, मुअन्नस हिया वो औरत। या वो औरत। सिस्टर तहरीन, तहरीम आरिफ करवाएं। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। या वो औरत। अब देखें, ये हमें पता चल गया कि हुआ वो मर्द और वो एक है, और हिया वो औरत और वो भी एक है। अब जो है, एक और बड़ी मजे की चीज देखते हैं कि मुजक्कर से मुअन्नस। तो आप ये गौर करें जरा कि यहां पर ये पूरे का पूरा वही मुस्लिम जो इसम था, पूरे मुस्लिम इसम के साथ आगे एक छोटा सा इजाफा हुआ है गोलता का, और ये मुअन्नस में बदल गया। तो मुस्लिम क्या था? मुस्लिम मर्द था, मुसलमान मर्द, और वो बन गया मुस्लिमातुन। इसको हम मुस्लिमातुन
پورا پڑھیں گے، اور اگر آپ اس پر رکیں گے اور گولتا جو ہوتی ہے آخری حرکت کے علاوہ یہ ہا میں بدل جاتی ہے، اس کو پڑھیں گے مسلمہ، آسانی کے لیے مسلمہ۔ اسی طرح مومن یا مومنن، مومنتن اگر پورا پڑھیں گے، ویسے پڑھیں گے مومن مومنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلے ذرا ایک دفعہ اس کو پڑھ دیجئے، پھر ہم جو ہے، اور اس کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں سسٹر ارم ریاض، پڑھیے۔ سسٹر ارم آپ خود کو انمیوٹ کیجئے مائک سے۔ مسلمن مسلمہ، مومنون مومنہ، صالحون صالحہ، کافرون کافرہ، مشرکن مشرکہ۔ مشرکہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آپ یہ بتائیں، آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ اس میں سے ہوا کس کے ساتھ لگے گا اور ہیا کس کے ساتھ لگے گا؟ مسلم کے ساتھ ہوا لگے گا اور مسلمہ کے ساتھ ہیا لگے گا۔ ماشاءاللہ، سسٹر بالکل روبینہ اختر صحیح فرما رہی ہیں۔ اور تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں، پھر ہم اس کو یوں لگا لگا کر دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہوا اور کہاں پہ ہیا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ دیکھیے، جیسا سسٹر نے فرمایا بالکل ویسے ہی ہم نے لگا دیا۔ ہوا مسلم ہیا مسلمہ، ہوا مؤمن ہیا مؤمنہ، ہوا صالح ہیا صالحہ، ہوا صابر ہیا صابرہ، ہوا شاکر ہیا شاکرہ۔ اگر میں بولوں صادقہ تو بتائیں کیا لگائیں گے آپ ساتھ؟ هي ہیا صادقة. صادق۔ ہیا صادق۔ اور اگر میں بولوں کافر تو کیا لگائیں گے؟ هو ہوا كافر. کافر۔ ہوا کافر۔ ہوا کافر۔ اچھا، اب اس ٹیبل کی اس کی پریکٹس کے لیے سسٹر ڈاکٹر شمیم کروائیے۔ هو مسلم هي مسلمة، هو مؤمن هي مؤمنة، هو صالح هي صالحة، هو صابر هي صابرة، هو شاکر هي شاکرة۔ ماشاءاللہ، سسٹر روبینہ اختر کروائیے۔ ہوا مسلم ہیا مسلمہ، ہوا مومن ہیا مومنہ، ہوا صالح ہیا صالحہ، ہوا صابر ہیا صابرہ، ہوا شاکر ہیا شاکرہ۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ سسٹر زاہدہ فدا کروائیں۔ ہوا مسلم ہیا مسلمات، ہوا مومن ہیا مومنات، ہوا صالح ہیا صالحات، ہوا صابر ہیا صابرات، ہوا شاکر ہیا شاکرات۔ ماشاءاللہ، یہ شاکراتن، تو آپ سب کو اس کا معنی بھی آتا ہے، آپ یہ سمجھ بھی گئے ہوا اور ہیا کا استعمال کیسے ہے۔ وہ مسلم وہ مسلمان عورت، وہ مومن وہ مومن نہ، یعنی مومن عورت، ایمان والی عورت، ہوا صالح وہ نیک مرد، یہ صالحہ وہ نیک عورت، ہوا صابر وہ صبر کرنے والا مرد، یہ صابرہ وہ صبر کرنے والی عورت، ہوا شاکر وہ شکر کرنے والا مرد، یہ شاکرہ شکر کرنے والی عورت۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے ہوا اور ہیا کی پریکٹس کی۔ آئیے اسی طرح، یہ تو وہ ضمائر تھے جو الگ سے آتے ہیں، اور پھر ہم نے پڑھا تھا ہو جو جڑ کر آتا ہے۔ تو آج ایک فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا، یہ جو ہم اکثر پڑھتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ صحابی ہیں تو ان کے نام کے ساتھ کیا لگے گا، اور صحابیہ ہیں تو ان کے نام کے ساتھ کیا لگے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ ابھی مرد کے لیے آپ نے کیا نا، ہو ہم کا یہ کم نہ، تو ابو بکر اللہ راضی ہو اس سے، اس ایک مرد سے، عنہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ اللہ راضی ہو اس ایک عورت سے، عنہا عنہا اس سے، تو اس سے ہا، عنہا اس عورت سے۔ ہا جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے، ہو جو ہے وہ مرد کے لیے ہے۔ اب اگر کسی بھی صحابی کا آپ نام لیں گے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اس سے راضی ہو اللہ، اس مرد سے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو
अब आपको हु और हा से वैसे भी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह आइंदा से अदायगी के लिए, और हमें यह भी पता चल गया कि हु मुअन्नस का है। जैसे हमने पहले किया था ना, रब्बू हु, क्या माना था रब्बू हु का? माना बताएं। मर्द का रब। मर्द का रब। उसका रब यानी उस मर्द का रब। और अगर मैं अभी बोलता हूँ रब्बू हा, तो क्या माना उस होगा? औरत का रब। औरत का रब। और दीनू हु, उस उस आदमी औरत का का, उस मर्द का दीन। और दीनू है, उस उस औरत का औरत का दीन। दीन। और किताबू हु, उस उस मर्द औरत की वो किताब। औरत औरत की, का की और किताब। किताबू हा। उस उस औरत की औरत की किताब। उस औरत औरत की की किताब। किताब। अच्छा, अब अगर मैं बोलता हूँ कलम हु, तो इसका बताएं। मर्द का इस मर्द उस मर्द मर्द का की दीन। कलम। अगर मर्द का मैंने कहना कलम। हो उस औरत का कलम, तो कैसे कहूंगा? कलमुहा। 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 कलमु हा। वेरी गुड। कलमुहा। कलमु हा। और अगर मैं कहना चाहता हूँ उस औरत का मोबाइल, जवालुहा। जवालुहा। जवाल हा। बिल्कुल ठीक जवालुहा। है, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमें आसानी हो गई, ये भी पता चल गया कि कैसे हम रब्बूहू से रब्बूहा मुअन्नस का, दीनुहू दीनुहा, किताबुहू किताबुहा। आइए इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। और प्रैक्टिस के लिए हम दावत देते हैं, ज़रा नए लोग कोशिश किया करें, सब लोग कोशिश करें चांस लेने की, ताकि हम, जाहिर है 100 से ज़्यादा लोग हैं, मैं हर एक को तो नहीं चांस दे सकता, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जी लोग। मैम। तौकीर फातिमा जी, सिस्टर करवाएं। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। माशाल्लाह, सिस्टर तहरीम आरिफ करवाएं। डॉक्टर वदिया करेगी। रब्बुहु रब्बुहा दीनुहु दीनुहु दीनुहा दीनुहु। किताबुहु किताबुहु किताबुहा किताबुहा। रसूलुहु रसूलुहु रसूलुहा रसूलुहा। इस्मुहु इस्मुहु इस्मुहा। 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 तो ये बताएं आप सारे मुझे, इस्मुहू का क्या माना है? उसका नाम। का उस नाम। उसे मर्द का औरत का नाम। मर्द नाम। का नाम। और इस्मुहा? आदमी का नाम। उस उस औरत का औरत औरत का का नाम। 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 बिल्कुल उस ठीक औरत है। का नाम। ब्रदर इस्माइल एक दफ़ा करवा दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। बेटे जिनका रब्बुहु नाम लिया गया है, वो करवा लें। रब्बुहा, हाँ। दीनुहु दीनुहा, दीनुहु किताब किताबुहु। किताबुहा, हाँ। रसूलुहु रसूलुहा, रसूलुहा। इस्मुहु इस्मुहा। इस्मुहु। इस्मुहा, बिल्कुल ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने किया आ, हु और हा का प्रैक्टिस। और अब अगर मैं आप लोगों से, आपको याद है मैंने, हमने किया था ना मन रब्बू हु। तो जब हम्म। कहा था मन रब्बू हु, आपने जवाब में क्या कहा था? रब्बू हु अल्लाह। अब मैं कह रहा हूं मन रब्बू हा, अब क्या जवाब देंगे आप? रब्बुहु रब्बुहा रब्बुहा अल्लाह। 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 रब्बुहा हाँ, रब्बुहा रब्बुहा अल्लाह। अल्लाह। रब्बुहा अल्लाह। रब्बू है अल्लाह। अल्लाह। औरत का रब अल्लाह है, ठीक है। रब्बूहा अल्लाह। और अगर मैं कहूँ मन रब्बूहा का हो गया रब्बूहा अल्लाह, अगर मैं कहूँ मा दीनुहा, तो फिर क्या कहेंगे? हाल इस्लाम। दीनुहु इस्लाम। इस्लाम। दीनुहा वेरी इस्लाम। गुड। दीनुहा इस्लाम। आप तो अरबी दान बनते जा रहे हैं, अरबी में कितनी जल्दी जवाब दे दिया। मा दीनुहा दीनुहा अल इस्लाम। और अगर मैं कहूँ मा किताबुहा, तो आप क्या कहेंगे? किताबुहा। किताबुहा कुरआन। किताबुहल या किताबुहल किताबुहा कुरान। वेरी गुड। कुरान। ये बड़ा अच्छा जवाब है। उसकी किताब कुरान है। उसकी किताब कुरान है। किताबुहा यानी उस औरत। ठीक हो गया। किताबुल कुरान। माशाल्लाह। किताबुल कुरान। अगर मैं कहता हूँ मन रसूलुहा, रसूलुहुल मोहम्मद रसूलुहा सल्लल्लाहु रसूलुहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम। वेरी गुड, मोहम्मद रसूलुहा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वसल्लम। सल्लल्लाहु मोहम्मद अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर मैं कहता हूँ मा इस्मुहा, तो कोई भी नाम लेके आगे बता दें। मा इस्मुहा इस्मुहा? सादिया। इस्मुहा नहा शाइस्ता। शाइस्ता। शाइस्ता, सादिया, जैनब, जो भी आप नाम लगाना चाहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आपको ये मुअन्नस के सीगे भी हा के साथ आ गए। अब जो है इसकी जमा बनाने वाली बात
کہ اس کی جمع کیسے بنتی ہے. تو گول تا کی جمع بنانا بڑی آسان ہے. جیسے کل آپ نے مذکر اسم بنایا تھا نا واو نون یا نون سے، یہاں پہ گول تا جو ہے یعنی مونس کی نشانی ہوگی. ایک تو یاد رکھیں یہ ہمیشہ نہیں ہوگی، اکثر گولتا مونس کی نشانی ہوگی. اور اس کی جمع کے لیے گولتا کو ہٹا کے الف تا لگا دیں. جیسے مسلمتن مسلماتن، مؤمنتن مؤمناتن، صالحتن ہاں صالحات. ہمیں مدد سے باقی تھوڑوں نے منا قرآن سے میوٹ ختم کر لیں پلیز، میوٹ کر لیں. پلیز آپ کائنڈلی خود سے خیال رکھیں. کافرہ کافرات، مشرکہ مشرکات، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں آخری حرکت کو چھوڑ کر. تو جی بردر وجی احمد پڑھیے. خود کو انمیوٹ کر لیں اپنا مائک، وجی احمد. مسلمہ مسلمات، مؤمنہ مؤمنات، صالحہ صالحات، کافرہ کافرات، مشرکہ مشرکات. سسٹر سعدیہ نجم کروائیں. مسلمة مسلمات، مؤمنة مؤمنات، صالحة صالحات، کافرة کافرات، مشرکة مشرکات. ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. اور آخری بات صرف آج کی سیکھ کے ہم سبق کو مکمل کرتے ہیں. جیسے کل ہم نے کہا تھا نا کہ اگر مسلمتن دو پیش مسلمن دو پیش کے ساتھ ہوگا تو واو نون، اور زبر زیر ہوگا تو یا نون. اچھا اس کی جمع میں بھی تھوڑا سا ہے، گو کہ یہ رہتا مسلمات ہی ہے، لیکن اگر دو پیش سے بنے گا تو اس کی جمع میں ہوگا مسلماتن. لیکن اگر دو زبر یا دو زیر سے جمع بنے گی، دونوں صورتوں میں جمع میں آئے گا مسلماتن، تن نہیں آئے گا. بس یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے مومنتن مومناتن، لیکن جب بنے گا مومنتن یا مومنتن سے تو بنے گا مؤمناتن. ٹھیک ہو گیا. تو چلیں ذرا آپ سارے مجھے کروائیں. صالحتن کیا جمع بنے گی؟ صالحات صالحات، اور اگر میں بولوں صالحتن تو کیا بنے گی؟ صالحات صالحاتن. اور اگر میں بولوں صادقتن تو کیا بنے گی؟ تن بنے گی. بالکل ٹھیک ہے، ایکسلنٹ. تو یہ ہو گیا جی ہمارا سبق آج کا مکمل. اب ایک چھوٹا سا انٹرسٹنگ دلچسپ سا کوئز ہے جس میں آپ نے کرنا یہ کہ پہلے آپ نے سوچنا ہے اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے جب میں کہوں کہ ایسا کیجئے. اب جیسے فار ایگزامپل ربہم، تو کس طرف کتنا اشارہ ٹائم کریں گے ہو آپ؟ گیا؟ بولنا نہیں، پلیز بولنے کا نہیں. آپ سارے اشارہ کریں ربہم کا کس طرف ہوگا، پھر میں اشارہ دکھاؤں گا، پھر آپ معنی بولیں گے. ربہم، کیا آپ لوگوں نے اس طرف اشارہ کیا سب نے؟ اب معنی بولیں. یس، ان سب کا رب. ان سب ویری کا گڈ. رب. ان سب کا رب. ربہم ان سب کا ہم رب. سب کا ایکسلنٹ. چلیں اگلا کرتے ہیں. یہ دین حکم، پہلے اشارہ کریں سارے، معنی نہیں بولنا، سب اشارہ کریں کس طرف کر رہے ہیں، کیونکہ اشارہ خود بخود معنی بتا دے گا. ٹھیک ہے. دین حکم، کیا آپ لوگوں نے یہ اشارہ کیا تھا؟ معنی بتائیں. آپ سب کا آپ سب کا دین. آپ سب کا دین. آپ سب کا دین. ایکسلنٹ، ویری گڈ. آئیے آگے دیکھتے ہیں اگلا کیا ہے. اور آگے ہے اردو کا لفظ ہے ہماری کتاب. اچھا اب اس کا بھی آپ پہلے اگر اشارہ کر لیں گے نا تو آپ کو اس کی عربی کرنی آ جائے گی. تو ہماری کتاب آپ کس طرف اشارہ کریں گے؟ اپنی طرف. اپنی طرف. اپنی اب طرف. اس کی عربی بنا لیں، آسانی سے بن جائے گی. کتابنا. کتابنا، نحن کتابنا، کتابنا. ہاں، نخنو نہیں آئے گا، وہ تو ہے نا ہم کے لیے، یہ ہماری کے لیے نا. تو ہماری کتاب، ان سب کا دین. پہلے اشارہ کریں پھر انشاءاللہ آپ سے آسانی سے عربی بن جائے گی اس کی. دینہم ان دینہم سب کا دین. دینہم دینکم دینہم، دینہم. دینہم، کم نہیں، کم ہوگا آپ کا دین. دینہم ان سب کا دین. سب
माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक किया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके साथ ही हमारा सबक मुकम्मल हुआ। आज का नुक्ता तालीम, कल हमने कहा था कि सीखने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों में से दिमाग में बिजलियां चमकाई जाती हैं, आवाज़, नज़र, कहानी, तस्वीर, मुख्तलिफ तरीक़ों से। और ज़्यादा से ज़्यादा बिजलियां चमकाने से दिमाग बेहतर सीखता है। उसका फ़ायदा क्या होता है? नंबर वन, माना जल्दी याद होगा। नंबर टू, देर तक याद रहेगा। जब आप किसी रेफरेंस से ज़हन में बिठाएंगे ना, किसी टिप से, ट्रिक से, तरीके से, और जल्दी याद आ जाया करेगा जब आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो टीपीआई का यही फ़ायदा है कि हमें कुरान समझने में आसानी हो, याद रखने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, साथ साथ अप्लाई करते जाइए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। और ये सब किसके लिए? कुरानी अल्फाज के लिए, ताकि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक बेहतर हो, बढ़ता जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 4 मुकम्मल हुआ। 44 अल्फाज जो कुरान में 15,000 से ज़ायद बार आए हैं, वो हमने सीख लिए। अल्लाह ताला हमें रोज़ाना कुरान पढ़ने, सुनने, आपस में याद करने, सुनाने, लोगों से इसकी बातें करने, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने की तौफीक दे। याद रखें, अल्लाह ने आपको चुना है। दुआ करते रहें कि अल्लाह हमें कुरान सीखने की तौफीक दे। अल्लाह से दुआ है कि कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।